Starting recording. Okay, so recording is started. Let's start. So today we are doing this chapter 6. We are continuing with the chapter 6. बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था और आज हम लोग सेट्स का एक और ऑपरेशन जो लास्ट डे छूट गया था एंड दैट वाज लाइक एक किसी ने पूछा था व्हाट इज दिस ट्रायंगल. दिस ट्रायंगल इज टर्म्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंसेस. What is this symmetric differences? Listen here everyone. It is nothing but A minus B union B minus A. All right, everyone. Now let me explain you with the help of a Venn diagram. Students, just tell me one thing. क्या मैंने लास्ट डे Venn diagram वाला ऐसा कुछ टर्म यूज किया था? नहीं, शायद नहीं यूज किया था. नहीं यूज किया था ना शायद. अच्छा, यूनियन मैंने समझाया था. अच्छा, लास्ट डे मैंने यूनियन समझाया था. यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ऐसा कुछ समझाया था मैंने लास्ट डे. नो सर. ओके सर, तो पहले मैं वो बता. नो सर. ओके, सो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यूनियन इंटरसेक्शन से, बिकॉज तब तो मैंने ऑपरेशन ही नहीं कराया था, तो ये सब सम से नहीं होगा, बहुत सारा सम. ओके, तो एक बार ध्यान दो, ऑपरेशंस. सो टुडे आई स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ऑपरेशंस. क्या क्या हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं दो सेट्स को लेकर के. So the first operation is union operation. What is union operation? ध्यान देना. This is the symbolic representation for this operation union, also termed as OR. Logically, you can say it is OR. And इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? Union. Now, what is union of two sets? Suppose we have two sets. Let's take A, whose elements are 1, 2, 3, and second set, that is B, whose elements are 2, 3, 5, 6. Suppose you are asked to find out A union B. Now let me tell you one thing. A is a set, B is another set. So what is A union B? A union B is also a set. When we say a set, we must use this bracket symbol. We must use this bracket, make sure. And then inside that bracket, we can represent elements two ways. One is the tabular form or the roster form, and the other is the set builder form. Now, let me explain you with the help of set builder form first. So, what is A union B? A union B is a set where the elements is a single component. I hope you remember last time मैंने जो बताया था, what is the meaning of single component? Where this element either belongs to set A or it belongs to set B. So as a result, we are finding that in A union B, I am going to write down all those elements which either belongs to set A or it belongs to set B. That is, I am going to just merge both the sets and nothing else. If I merge both the sets, I will be getting 1, 2, 3, 5, 6. So we are finding that here the elements either belong to set A or it belongs to set B. I hope it is clear, everyone. Now, let me explain you the Venn diagram, or also called Venn-Euler's diagram. What is this Venn diagram or Venn-Euler's diagram? It is the pictorial representation of this entire thing, entire operation. इस entire operation को हम लोग pictorially भी represent कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं Venn diagram or Venn-Euler's diagram. So how to represent? Listen here. Here we are finding that first of all we have got two sets, that is set A and set B. Now the question is, why am I drawing both the circles? Okay, where you are finding that a particular region is intersecting. Why am I doing this? Why I am not drawing this way? Because I am not drawing this way because there are few elements in both the sets which is intersecting, which is common. कुछ एलिमेंट्स ऐसा है कि दोनों सेट्स में कॉमन है, इसलिए मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं. दूसरा बात, जब भी हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज वी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल. इट इज नॉट एग्जैक्ट सर्कल, इट इज it's a bit oval in shape, okay, but okay, you can draw circle also, no problem. Okay, so ध्यान देना एक बार. अब हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना. इसके अंदर हम एलिमेंट जो लिखेंगे, पहले मैं इसको एक बार
सर्कल से ओके, पहले मैं एलिमेंट्स को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स, ऐसा कुछ एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देना, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पे। उसके बाद ए के अंदर ऐसा एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज 1। बी में ऐसा कुछ एलिमेंट्स है जो ए में प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट इज 5 and 6. Clear? So overall we can say that if you have got two sets and if I ask you union, if you have got two sets and if I ask you union of both the sets, so union means all the region of set A as well as set B, all the region of set A as well as set B, where there are few regions which is exclusive, okay, exclusively only in present in set A. There are few elements which is exclusively present in set B, and there are few region, there is a region which is present in both the sets, matlab this is intersecting region, and the entire green, blue and red, green, blue, red and blue, ये पूरा तीनों कलर का मिला करके क्या होता है, यूनियन होता है। यूनियन मतलब पूरा सेट के अंदर सब कुछ। आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर। सो पहले मैंने क्या बताया कि रीजन वाइज किस रीजन के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा। फिर मैंने बताया कि ये यूनियन जब मैं बोलता हूं तो क्या ये स्पेस भी आएगा, ये सब कुछ, ये रीजन प्लस ये रीजन प्लस ये वाला रीजन। ऑलराइट एवरीवन, नाउ ये काम करके हम साथ में मैं यूनियन का फॉर्मूला भी डिराइव कर देता हूं, ध्यान में कर सकते। Now can I say that I hope because मेरे लिए इसीलिए आसान हो जाएगा because थोड़ा बहुत तुम लोगों को क्लास 8 9 में किया हुआ है, थोड़ा मैं बहुत कुछ एक बार में बताया था। सो एक बार बताओ, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया कि A यूनियन B के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट B। बट एक बात बताओ, क्या हम लोग दोनों का जो कॉमन रीजन है उसको दो बार काउंट कर रहे हैं? नहीं काउंट कर रहे हैं ना। एक बात बताओ, जब मैंने n ऑफ a बोला तो ये रीजन को इंक्लूड किया था, देखो एक बार इस रीजन को इंक्लूड किया था। जब मैंने n ऑफ b बोला तो भी मैंने ये रीजन को वापस इंक्लूड कर लिया। तो मेरा यहाँ पे एरर क्या है बताओ तो। इस तरह का फिगर के लिए जहां पे कुछ एलिमेंट्स है जो दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट है, सो व्हाट इज माय मिस्टेक, प्लीज पॉइंट आउट माय मिस्टेक हियर। n ऑफ a प्लस n ऑफ b, व्हाट इज माय मिस्टेक, प्लीज टेल मी। सर जो सिमिलर एलिमेंट्स है वो दो बार आ रहे कॉमन हैं। एलिमेंट दो बार आ रहा है। दो बार आ रहा है, दो तो बार हटाना रिपीट हो रहा है। पड़ेगा। करेक्ट, तो मुझे हटाना पड़ेगा ना, दो बार काउंट कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्लियर एवरीवन? सो इट इज n ऑफ a 3, n ऑफ b 4, 3 और 4 मिला के 7 हो गया। 7 आंसर है? बिल्कुल नहीं है 7 आंसर, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो दोनों में प्रेजेंट है। एक बार माइनस कर, एक बार माइनस कर। आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर एवरीवन। ऐसा बिना बताए हुए इंटरसेक्शन का मतलब, क्योंकि मैं ये एक बार अज्यूम कर रहा हूं कि इंटरसेक्शन फिर भी तुम लोगों को 8 9 में 10 में ये सब किया हुआ है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्लियर है। इज दिस ओके एवरीवन? ओके, सो एवरीवन कॉपरेट फास्ट। If you have any confusion, you can just ask me, okay? तो मैंने क्या क्या बताया, यूनियन क्या होता है, यूनियन कैसे निकाला जाता है, यूनियन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? एक में मैंने बताया कि एलिमेंट्स कैसे कैसे कहां पे आ रहे हैं, और एक में मैंने बताया कि किस रीजन को यूनियन कहा जाता है। एंड देन मैंने फॉर्मूला को डिराइव, मतलब तुम लोग देख करके फॉर्मूला डिराइव किया, और मैंने कुछ नहीं बताया। Yes, students, I think it's clear to everyone. Okay, so if you have any doubt, you can just ask once. I'm waiting for just 1 minute. Okay, you can put in your mind. Okay, so next operation is, excuse me, intersection. So second operation is intersection operation. Symbolically it is represented with this symbol, I mean ये symbolic representation इसका, या फिर हम इसको and भी बोलते हैं, and इसको ये हो गया intersection। ओके, intersection। Now
सो एवरीवन नोट डाउन हियर। सबसे पहले हम एक बार एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि इंटरसेक्शन होता क्या है। लेट्स टेक 1, 2, 3, 4, 5 and 6, okay? And set B 2, 4, 6, 7, 9. Okay? Now, suppose if I say A intersection B, simple language में बोल सकते हैं common elements. यूनियन मतलब मर्ज कर दो, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है वो निकाल के लिख दो। बट लिखेंगे कैसे? एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सो A intersection B means a set which includes that elements of set A and set B, and set A and set B, देखो मतलब मैंने बोल ही दिया, which includes all those elements which is present in set A and set B at a time. But there in all and union part, we saw that elements either belongs to set A or it belongs to set B. Here, not either. Only if the element is present in both the sets at a time. So as a result, if this is the set builder representation of intersection, what is the elements in satisfying this condition? What is that element which is at a time present in set A and set B both? It is 2. It is 4. It is 6. All right, everyone. Is this clear, everyone? So we find that intersection के अंदर वो सिर्फ एलिमेंट्स है जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है एट अ टाइम। और यूनियन में क्या होता है? कोई में भी अगर हो तो लिख दो बस। इसको अब हम पहले एक बार एलिमेंट्स किस रीजन के अंदर आ रहे हैं पहले मैं वो बता दूं। इस रीजन के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो 2, 4, 6 2, 4, 6 किसी भी ऑर्डर में लिखो, बिकॉज़ लास्ट टाइम हमने देखा था कि किसी भी ऑर्डर में लिखे कोई दिक्कत नहीं। और इसका अगर हम देखें तो फिर इंटरसेक्शन का मतलब ये रीजन हो जाएगा। ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है इसको इंटरसेक्शन रीजन वाइज मैंने बता दिया। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करना बहुत आसान है। जो यूनियन का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को अगर हम फॉर्मूला में सब्जेक्ट बना दें, देखो एक बार इसको सब्जेक्ट बना दें इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला इंटरसेक्शन का। ऑलराइट एवरीवन, अब हम अगर देखें तो बहुत सिंपल सीधा सा चीज है। देखो मैं बता रहा हूं, इसमें हम क्या कर रहे हैं देखना एक बार। हम दो पेन का यूज करते हैं, ठीक है? दो पेन का यूज कर रहे हैं। एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी। ए को मैं काम करता हूं ग्रीन कलर से शेड कर दे रहा हूं पूरा ए को, और मैं बी को शेड कर दे रहा हूं रेड कलर से। दोनों में शेड करने के बाद कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें दोनों दिख रहा है कि दोनों कलर आ रहे हैं? तो बस कलर वाइज अगर हम देखें तो कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन, वही तुम्हारा इंटरसेक्शन, ठीक है? तो हम कर क्या रहे देखना एक बार। हम पूरा ए के अंदर जितना एलिमेंट है वो काउंट कर दे रहे हैं। ऐसे बस इसको ऐसे देख लो, ज्यादा बेटर है। इसको बस लेफ्ट में ले लो और इसको राइट में ले लो, दैट्स ऑल। इट इज जस्ट मोर सिंपल, ओके? सो अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द फार्मूला फॉर इंटरसेक्शन। तो फटाफट कॉपी करना एक बार ये वाला पार्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे a माइनस b, b माइनस a, ये सब देखेंगे। So the third is a minus b and b minus a. So a minus b is also written as a intersection b complement, but I did not explain you the meaning of complement. Let me first of all explain you the meaning of complement first. ध्यान देंगे, पर थर्ड नंबर पहले मैं यहाँ कंप्लीमेंट बताता हूँ, ये चीज फोर्थ नंबर हो जाएगा। कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है देखिए। तो सबसे पहले तुम लोगों को यूनिवर्सल सेट का मतलब क्लियर होना पड़ेगा। शायद मैंने यूनिवर्सल सेट लास्ट डे बताया था कि यूनिवर्सल सेट मींस इन कंटेक्स्ट to that the particular question which we are solving, we are I mean taking an example or a question, anything, बाकी जितना सेट्स होगा उसका सारा एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं हम लोग। ओके एवरीवन, ना इसको हम कैसे, एक बार हम इसको मैंने दिया एग्जांपल में बताने के लिए। कंप्लीमेंट का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कंप्लीमेंट? कंप्लीमेंट का मतलब होता है जैसे
कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, उसमें से सारे एलिमेंट्स ए का हटा दो। एक कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। ए को अगर हम हटा दें 1 2 3 4 5 तो क्या क्या बचा? 6 7 और 8, ये तीन चीज बचा। समझ में आया? तो बात, एक कंप्लीमेंट मतलब पूरा यूनिवर्सल। मैं कंप्लीमेंट जब बोलूं मैं, तो मैं किसके हिसाब से बात कर रहा हूं? विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देना, तो जो बाकी जो बचता है, ए को हटाने के बाद जो बचता है वो हो गया एक कंप्लीमेंट। इसको हम लिखेंगे कैसे? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यूनिवर्सल सेट को कैसे लिखा जाता है। प्लीज नोट डाउन, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, और बाकी जितने सेट्स हैं उसके अंदर लिखेंगे कैसे? सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब यू, और बाकी जितने सेट्स हैं उसके अंदर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेट है तो एक ही मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। और इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। इसके बाहर क्या क्या लिखेंगे? 6 7 8। I hope it is clear everyone the meaning of complement. When I say a complement, मतलब a को छोड़ के इसके बाहर सब कुछ, a को छोड़ के इसके बाहर सब कुछ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक कंप्लीमेंट बोलते हैं। ओके, अब मेरे लिए ज्यादा इजी होगा a माइनस बी समझना, ध्यान दें। तो अब सपोज यू हैव अ सेट a, if you have a set a whose elements are 1 2 3 4 5, and you have another set b whose elements are, let's take 4 5 6 7 8. All right everyone, now if I ask you what is a minus b, a minus b means from a, from a ignore b, from a delete elements of b. So how, what are the elements to be deleted? Please can you tell me? Yes, 1 2 3 I'm saying deleted, deleted बोला मैंने बोला कौन सा लिखना है? मैंने बोला क्या क्या डिलीट होगा, मतलब a minus b के अंदर क्या आएगा? 4 and 5 ऐसे deleted, a minus b मतलब from a delete b, मतलब a से b हटा दो, from a 1 remove 2 it. 3 Yes, 1 2 3 1 2 3 will be the elements. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ from a remove or delete, you can say, all the elements of B. Clear everyone? And how to represent it with the help of a Venn diagram. Venn diagram में कैसे represent करेंगे हम लोग? A है ये, B है ये, ठीक है? A minus B मतलब कौन सा रीजन? A minus B मतलब 1 2 3, मतलब मैं कॉमन रीजन को सिर्फ छोड़ दे रहा हूँ। देखो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो छोड़ दे रहा हूँ, और 1 2 3 मतलब सिर्फ ये और ये, मतलब इस रीजन के अंदर। तो हम इसको एक बार वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। आई मीन ये वेन डायग्राम ही है, बट इसको अगर हम थोड़ा शेड करके दिखाएं, a माइनस बी का मतलब ये हो, समझ में आया? तो बात, a माइनस बी का मतलब ये हो गया, दिस इज a माइनस बी। ऑलराइट एवरीवन? यस स्टूडेंट्स, आई होप यू आर थिंग्स आर गेटिंग मोर क्लियर। मैंने यहाँ पे इस रीजन में कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने रीजन को शेड करके दिखाया। अब मैं इसके अंदर ही मैं एक बार बता देता हूं कि b माइनस, अच्छा एक और चीज, क्या मैं नहीं बोल सकता हूं कि एक कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए? यूनिवर्सल सेट में से a हटा दो, एक कंप्लीमेंट हो गया, ऐसा नहीं बोल सकता हूं? देखो देखो, a माइनस b मतलब फ्रॉम a रिमूव b, एक कंप्लीमेंट मतलब फ्रॉम u रिमूव a। तो अगर मैंने u से a को रिमूव कर दिया तो क्या क्या बचा? a को रिमूव कर दिया तो क्या क्या बचा? 6 7 8, मतलब क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ यूनिवर्सल सेट माइनस में? एक ही बात हुआ। अब देखना एक बार, तो एक बार ये बगल में लिख लो एक बार फटाफट लिखो, ये चीज को एक बार लिखो फटाफट।
Yeah, I hope everyone has copied this. Okay, the formula part also. So just let me move ahead with the next part. That is why how both is same thing. Listen minute. So I'm drawing A. Okay, मैं A पहले draw कर रहा हूँ. A को मैं पूरा ब्लू कलर से शेड कर दे रहा हूँ. ठीक है, A को मैं पूरा ब्लू कलर से शेड कर दे रहा हूँ. See, when I'm saying B complement, I must draw universal set because there is no question of complement until unless there is a universal set. Now tell me B complement. If I say that this is A, the one which I've shaded with blue is A. Let us draw B complement with a red color. Who can tell me what do you mean by if this entire is blue? I mean ये red के अंदर सारा कुछ B है, तो B complement का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? I think color is visible. Yes. बताओ. What do you mean by B complement? Yes. Anyone? Please unmute yourself and tell me. What do you mean by B complement? कौन से region को shade करना है? बताओ. B complement मतलब कौन से region को shade करना है? So n of universal set minus n of B Yeah, you are absolutely B correct. minus A. मतलब you have tried to explain that पूरा universal set में से आप B को हटा दो. मतलब B को हटा दो मतलब ये रीजन को शेड कर दो आप. I hope I am correct. What do you mean is this only? ये पूरा रीजन जो मैं शेड कर रहा हूँ. Okay. So B complement मतलब इसके बाहर, B के बाहर सब कुछ. B को हटा दो, तो B को हटा दो मतलब मैंने B को लिया ही नहीं. B complement मतलब मैंने B को तो लिया ही नहीं. अब मुझे बताओ तुम लोग सबको कौन सा वो रीजन है जो A का और B complement का कॉमन पोर्शन है? कौन सा बताओ? सर A इंटरसेक्शन. प्लीज थिंक एंड टेल. एक बार ठीक से बोलो. मैंने बोला A और B complement का कॉमन कौन सा है? देखो ये इसके बाहर सब कुछ B complement है, इसके अंदर सब कुछ A है. कौन सा रीजन रेड और ब्लू दोनों से शेडेड है? बताओ. A minus B. Yes, this is A what minus I B. mean. This region, this one. Okay, so I'm shading that with green also, so that it is more clear to you. I'm shading that with green also, so that it is more clear to you. Am I correct, everyone? So I hope it is clear to everyone that A minus B is also same as A minus B is also same as A intersection B complement. And similarly, B minus A is same as B intersection A complement. So I मैंने Venn diagram के हिसाब से जो शो कर दिया, जो भी जितना भी एस्पेक्ट्स है, जैसे कि क्लास का खाने में तो मम्मी को जो भी तुम्हारा मतलब वेज है, जैसे कि A minus B क्या है, तो उसका मैंने Venn diagram से भी बता दिया. ये वाला पोर्शन है, एलिमेंट्स कहाँ लिखना है ये बता दिया. उसके बाद मैंने डायग्राम बना के भी दिखा दिया और क्लियर है. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट एक और टॉपिक है. A minus B हो गया, B minus A हो गया, A ट्रायंगल B जो पार्ट बचा है ना, जो पहला डाउट पूछा था किसी ने, अब वो पार्ट बचा है. अब ध्यान देना A ट्रायंगल B का मतलब क्या होता है. Now, question number 5. Number 5 is A triangle B. What is this? Listen. It is. तुम लोग मुझे बता पाएगा, मैं सिर्फ इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं. A है, ये B है. ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन is A triangle B. तो who can tell me कि इसका क्या होता है? बताओ. तो what do you mean by this? बताओ क्या मतलब A triangle B. What do you understand? Can you tell me with the help of operations? वेन डायग्राम में तो मैंने बता दिया. अब बताओ तो इसको ऑपरेशन वाइज बताओ. तो जैसे A union B क्या है मैंने बताया. So n of A minus B union B minus A. See, when I ask only A triangle B, you just say A minus B union B minus A, because I did not ask you what is cardinal number. अगर मैं ये पूछा रहता what is n of A triangle B, then you are correct that it is n of A minus B plus n of B minus A.
बट मैंने कार्डिनल नंबर नहीं पूछा, मैंने सेट पूछा कि ए ट्रायंगल बी के अंदर क्या होगा। वो एक सेट होगा जो a माइनस बी और b माइनस ए का बस यूनियन कर देगा। जो मैंने a माइनस बी निकाला, दो अलग अलग चीज निकालना, क्या, एक a माइनस बी और दूसरा b माइनस ए, और बस करना क्या है, दोनों को यूनाइट कर देना, मर्ज कर देना। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर एवरीवन। शैल आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ? कोई दिक्कत है किसी को इस पार्ट में? नहीं, अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो एक बार ये फटाफट कॉपी करो और अपना अपना बुक निकालो, ओपी में लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे इन लोग यूनिवर्सल सेट को ये वाले सिंबल से डिनोट किए, ठीक है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। तुम इसके जगह पर यूनिवर्सल सेट ये भी सिंपल तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स है 80। एन ऑफ, हाँ बोलो सर ये तो हम लोग एनसीएस के साथ कर लिया था। क्लियर, ये वाला चीज, ये वाला क्लियर, अच्छे से Yes, आप क्लियर जब है। एनसीएस की क्लास ये बताओ। अच्छा मतलब क्लियर है, अच्छे से बताओ तो एक बार पहले। यस सर बस एक सेम आप कराने वाले थे सर, नंबर 11। अच्छा हाँ, अच्छा the अच्छा last one. अच्छा ओके फाइन, मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज एज आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास, एक सम में कर देता हूँ ये वाला, और फिर डायरेक्ट एक सम में तुम लोगों को दूंगा करने के लिए, फिर नंबर 11 बता देंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट मैं जो कर रहा हूँ वो एक पूरा कंप्लीट फ्लो में रिकॉर्डिंग बढ़िया से हो जाएगा। अगर किसी को चाहिए रिकॉर्डिंग तो वो देख सकता है, ओके। तो मैं एक बार कंप्लीट करता हूँ एक सम। सो इट्स n of a is 48, n of b is 40, n of a intersection b is 25. To draw a Venn diagram to find. So I will use Venn diagram method. Let me first explain you with the help of the formula. Okay, and the first question is, what is n of a union b? So the formula is n of a plus n of b minus n of a intersection b. So everything is known to you, which is 48 plus 40 minus 25. Let us simply solve this, we get the answer. Clear everyone? Next. Question number 2 now. इसके अंदर second question है, what is A union B whole complement? A union B whole complement. Can you explain me logically with the help of Venn diagram? You just tell me what do you mean by A union B not complement? Can you explain me Venn diagram में? ये है universal set, ये है A, ये है B. So where do you, I mean, what do you say about A intersection B complement? मतलब A intersection B not का मतलब क्या होगा बताओ? Yes, is that तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। correct? It is universal set. मतलब मैं जब complement बोलता हूँ, it is always with respect to universal set. Okay, it is always with respect to universal set minus n of A union B. So it is n of universal set is 80 and union is 88 minus 25 is 63. Find out 70. Okay. उसके बाद next question है n of a minus b. N of a minus b. You know that it is n of a minus n of a intersection b. What is n of a? It is 48. What is n of a intersection b? 25. Find out and see what is the calculation. I mean, you find out the result. Now, n of b minus a. N of b minus a is how much? It is n of b minus n of a, it is b intersection a. Do the calculation. And then, number 5 is n of a intersection b complement. You know that a intersection b complement is same as a minus b. And the last one, a complement intersection b is same as b minus a. So this and these things are already calculated. You can just directly write on the answer. Fine everyone. So ये एक हो गया सम. अब मैं बस तुम लोग को एक सम वाइज लाइक जिसका हो गया है वो भी एक बार देख लेगा और क्लियर हो जाएगा. And then we go to number 9. Yes, done. So in question number 9, in a group of 80 people, 40 like Indian food, 36 like Chinese food, 26 do not like any of this kind of food. Draw a Venn diagram. Okay, fine, let's draw a Venn diagram. So my question is, shall I draw universal set
or not? Tell me. What do you comment? Shall I mean, I must draw universal set or जरूरत नहीं है, बताओ. तो सरबत है। We should draw. Yes, draw करना पड़ेगा. रीजन क्या बता रहे थे? देखो एक लाइन से पता चल रहा है. 27 do not like any of this kind. मतलब कुछ लोग ऐसे भी है जो तुम्हारा इंडियन फूड और चाइनीज फूड के बाहर कुछ और लाइक करते हैं. मतलब और भी बहुत कुछ है. ये हो गया तुम्हारा इंडियन फूड, चाइनीज फूड, इंडियन फूड, चाइनीज फूड, यूनिवर्सल सेट. और इंडियन फूड के अंदर मतलब अगर हम देखें ऐसे इस तरीके से मैंने समझाया था, याद करो तुम लोग. यू रिमेंबर दिस? ये तरीका कितना बेटर था. इसमें कहीं कुछ रॉन्ग होने का चांसेस ही नहीं, फॉर्मूला भी नहीं चाहिए. तो इंडियन फूड मतलब, और एक और चीज याद रखो, एज यू हैव फॉलोड यू द सेम, तो तुम लोग को लिखना भी चाहिए. लेट यू मतलब ये क्या है? सेट ऑफ ऑल पीपल, सेट ऑफ पीपल इन अ ग्रुप, पीपल इन अ ग्रुप. ये लिखना चाहिए अगर याद करो तुम लोग, तो मैंने बताया था. आई क्या है? सेट ऑफ पीपल हु लाइक इंडियन फूड, वो लिख देना. सी मतलब चाइनीज फूड. ठीक है, वो लिख देना. अब आगे देखो. अब दिया क्या है? वी नो दैट इंडियन फूड लाइक करने वाले, इंडियन फूड ये हो गया लाइक करने वाले, ए और बी का सम, वो वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 40. उसके बाद चाइनीज फूड लाइक करने वाले मतलब बी प्लस सी. कितने लोग हैं टोटल? 36. टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं? पूरा यूनिवर्सल सेट कितने लोग हैं यहाँ पे? 80 है. जो यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. अगर रिप्रेजेंट करना है तो d भी लिखो बाहर. तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा 80. ठीक है. उसके बाद 27 डू नॉट लाइक anything of Chinese and Indian. Okay, Indian Union Chinese का not complement. इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन यूनियन चाइनीज का कॉम्प्लीमेंट को नॉट मतलब इसके बाहर मतलब ना यूनियन, आई मीन इंडियन और चाइनीज का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, इसके बाहर सब कुछ. और ये कैसे लिखेंगे हम लोग? यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ आई यूनियन सी. आई यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 27. यूनिवर्सल सेट कितना है? 80. तो यूनियन भी तो मिल जाएगा ना. यूनियन कितना हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा 80 माइनस 27. कितना होता है बताओ तो? कैलकुलेशन 53. उन्होंने कर लिया शायद 80 या 53. यूनियन क्या है? a प्लस बी प्लस सी. पता है इतना कुछ निकालने के बाद कुछ बचा ही नहीं. आराम से निकाल सकते हैं सब कुछ. देखो कैसे आई यूनियन सी निकल गया. तो एक बात बताओ, अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 53 है, और अगर b प्लस सी का वैल्यू 36 है, b प्लस सी का वैल्यू 36, तो फिर a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 53 माइनस 36. कितना हो गया? 17. तो मतलब a का वैल्यू क्या हो गया? 17. a का वैल्यू 17 हो गया, तो b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा 23. पुट कर लो a का वैल्यू 17. यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? a का वैल्यू 17 पुट करेंगे तो b क्या हो जाएगा? 40 माइनस 17 दैट इज 23. ठीक है. c क्या हो जाएगा? c हो जाएगा b का वैल्यू 23 यहाँ पुट कर दो तो c हो जाएगा 30. पता कुछ बचा ही नहीं. आराम से एक लाइन में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं वेन डायग्राम वाले मेथड से. हाउ मेनी लाइक बोथ काइंड ऑफ फूड? बोथ मतलब बी, पहला वाला का आंसर बी हो जाएगा मतलब 23. आंसर क्या अपना पहला वाला का? 23. 11 का 9 नंबर का. यस 23. दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लाइक ओनली द इंडियन फूड? ओनली द इंडियन फूड. ओनली द इंडियन फूड मतलब a प्लस बी या a? बताओ तो कोई. A. A. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. बिकॉज a प्लस b मतलब इंडियन फूड, ओनली इंडियन मतलब a. तो a का वैल्यू क्या है हम लोग का? 17. तो देखो आंसर अपना 17 है. कितना इजी तरीका है देखो तो. हाउ मेनी लाइक ओनली चाइनीज फूड? c. तो अपना c का आंसर क्या है? 13. 13 इज द आंसर. फॉर्मूला वाइज जाना चाहो तो भी वो माइनस वाला मेथड, वो जो ब्रैकेट फॉर्म का दिया वो यूज कर सकते हैं. समझ में आया तो सबको? तो फटाफट कॉपी कर लो और ये वेन डायग्राम मेथड से बहुत आसान हो जाएगा.